ایک طرف پاکستان کی داخلی سیاست ہے اور دوسری جانب خارجہ محاذ پر بھی پاکستان اس وقت اہم ترین ملک ہے، اور اسرائیل امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے، اور اب اگلا جو آنے والے دن ہے اس میں ایک نئے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بڑی جنگ کے چھڑنے کا خطرہ موجود ہے، اور جب تک صدر ٹرمپ ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، انتہائی انپریڈکٹیبل ہیں، اور اب انہوں نے ایک اور نیا محاذ کھولا ہے، اور اس محاذ میں انہیں کافی زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور عالمی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کو، اور امریکہ بھی عالمی تنہائی کا شکار، اور اس کے ساتھ جناب نیتن جو بہت زیادہ وہ اگریسولی آ رہے تھے، تو ان کو بھی کچھ بریکس لگ گئی ہیں، لہذا امریکہ اور اسرائیل، نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کا جو یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ اتحاد جو ہے وہ آگے جا کے بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے ہم ذرا پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ہم دوغلے پن کا شکار ہیں، ہمارے حکمران خاص طور پہ، اور اس حد تک دوغلے پن کا شکار ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف ہم جنگ بندی، ہمارے حکمران بے چین ہیں کہ کریڈٹ لیا جائے جنگ بندی کا، اسرائیل ایران امریکہ جنگ بندی کا کریڈٹ لیا جائے اور اس کا سہرا ان کے سر پر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنس کروا رہے ہیں کہ ہمیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا جائے، اور نامزدگیاں کروا بھی رہے ہیں، کہہ کر کروا رہے ہیں کہ ہم بہت ہی امن کے دائی ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے داخلی سیاست کو دیکھیں، وہ ذرا ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں بدترین قسم کی فسادیت اور ظالمانہ نظام حکومت اس وقت مسلط ہے، اور ایک ایک کر کے ہر کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا معاملہ ایک بار پھر اجاگر ہوا ہے، اور سلمان صفدر صاحب نے کچھ حقائق کھول کر بیان کر دیے ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب کا معاملہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اب اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں ایک خبر آ چکی ہے، اور اس کو اب عالمی میڈیا بھی اس کو خبر کو کور کر رہا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب 70 سالہ عمر ہے ان کی، اور بہت ہی سیزن، بہت ہی شریف النفس آدمی ہیں۔ کوئی ماضی کی سیاست ان کی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، وہاں سے وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور سینٹر بنے، لیکن 9 مئی کے فال فلیگ آپریشن اور بے بنیاد مقدمات میں ان کو بھی پھنسایا ہوا ہے، جیسے باقی ہمارے رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان میں سے ایک ہیں، میاں محمود رشید صاحب بھی بیمار ہیں، اور سب کا شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیمار ہیں، ان کا بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہیں سے ان کا علاج کروایا جاتا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں ان کا بائی پاس ہو چکا ہے، اب ان کی جو گردے ہیں وہ سٹیج 3 پہ جا چکے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا علاج ہسپتال میں ممکن نہیں، لیکن ظالم حکمران جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان کو کوئی ریلیف دینے کا حکم صادر کرنے سے انکاری ہیں۔ دوسری جانب یہ معاملہ اسی طرح سے بہت سارے بے شمار مقدمات، بے شمار جو واقعات ہیں، اور بے شمار ایسے ظالمانہ حکمرانوں کے جو ظلم کا شکار لوگ ہیں جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی نئی اطلاع آ چکی ہے، اور سلمان صفدر صاحب نے واضح طور پر 2-3 باتیں کی ہیں، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ 3 ماہ، عمران خان نے دوبارہ کہا کہ 3 ماہ تک وہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو بتاتے رہے میری آنکھ میں تکلیف ہے، مگر انہیں علاج کی سہولت نہیں دی گئی، اور پھر ایک آنکھ کی مکمل بینائی چلی گئی، اور کئی دن تک وہ کئی روز تک ایک آنکھ سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد خفیہ طور پر انہیں پرمس لے جایا گیا اور وہاں پہ انجیکشن لگایا گیا، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی بینائی صرف 15% واپس آ سکی ہے، 85% ابھی تک بات واپس نہیں آئی۔ اور سلمان صاحب نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں بند رکھا جاتا ہے، اور اس ظالمانہ اقدام کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ عدالت میں سب سے اہم درخواستیں عمران خان کی ضمانت کی ہیں، جن پر چند منٹ میں دلائل سن لیے جائیں تو ججز ان کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کی کارکردگی اور اسلام آباد راولپنڈی مارچ روکنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ بات بھی کہی۔ اب ان میں 3-4 باتیں انہوں نے کہی ہیں جی، خاص طور پہ نمبر 1 یہ کہ ان کی آنکھ بدستور خراب ہے اور 85% بینائی جا چکی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی بہتری نہیں آئی۔ نمبر 2 انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب جب سلمان صاحب مل کے آئے تھے تو انہوں نے بتایا نہیں تھا، اب انہوں نے اظہار خیال کیا ہے اور بتا دیا کہ جناب یہ صورتحال ہے۔ پھر ایک جلسہ منسوخ کیا گیا تھا راولپنڈی کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں بھی مجھ سے منسوخ کوئی بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ کہا یہ تھا کہ یہ جلسہ
रावलपिंडी का इमरान खान साहब ने कहा इसलिए मुलतवी किया जाता है। अब जरा थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। तो अब ये बात हुई है कि पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला किया था। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला किया, और खासतौर पर फिर दूसरा पैगाम आया था कि महमूद खान अटकज़ई साहब से और जनाब राजा नासिर अब्बास साहब, इनसे मिलकर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाए। तो उनकी भी शायद वो कहते हैं कि राय यही थी कि इसलिए हम कर दें। तो बहरहाल मामला यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है, अगर उसने कोई एग्रेसिवली और जानदार तरीके से कोई तहरीक न चलाई और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई अमली कदम ना उठाया, तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसको कुछ अर्सा पहले बूम मिला था, वो भी उसका शिकार हो जाएंगे और अवाम उनको भी रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि जनाब आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। ये छोड़े बात, इमरान खान साहब तो जेल में है, उनको अखबार नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा, कोई मुलाकात नहीं हो रही, 24 घंटे तक 23 घंटे तक उनको कैद खाने में रखा जाता है। आप ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से महमूद खान अटकज़ई साहब ने कहा है कि खा हुक्मरानों की ख्वाहिश हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हो, माइनस इमरान खान की हर कोशिश पर हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे और किसी भी सूरत में ये मामला हम नहीं होने देंगे और इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता। अगली खबर है जी, सोहेल अफरीदी साहब ने अब आज गुफ्तगू की है, एक वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने 19 अप्रैल को मर्दान में जलसे का ऐलान किया है। क्योंकि इमरान खान साहब की हिदायत उन्होंने कहा थी, उनका हुक्म आया था कि पेशावर में जलसा किया जाए और 9 अप्रैल का जो है एहतजाज वो मनसूख कर दिया जाए। तो 9 अप्रैल का एहतजाज मनसूख करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम मर्दान में इमरान खान साहब के हुक्म पर 19 अप्रैल को ये जलसा कर रहे हैं। और खासतौर पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया उन लोगों को जो कि इस जलसे को भी सबोटाज करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात हैं, और देखते हैं कि 19 अप्रैल को इनके एहतजाज की कॉल पे कितने लोग बाहर आते हैं। इमरान साहब की फैमिली भी, उनकी बहनें भी बसरेआम ये बात कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी जो है वो हक अदा नहीं कर रही। अगली खबर चलते हैं जी बाहर की दुनिया में। अब ये तो सूरत हाल मैं आपको जहां से बात शुरू हुई थी, ये तो है सूरत हाल अंदर की कि अब इन सब के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, कैद तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है। उनकी आंख ज़ाया कर दी गई और मियां महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, ये सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उमर सरफराज, चीमा साहब और डॉक्टर यास्मीन राशि साहब, इनके साथ जो बदतरीन सलूक किया जा रहा है, ये हम बाहर की दुनिया पे बड़ा अपना, हमारे हुक्मरान बहुत उजला उजला चेहरा दिखाते हैं कि जनाब देखें हम तो अमन के लिए मरते जा रहे हैं, अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, इस्तेहकाम होना चाहिए और दुश्मनियां खत्म हो जाएं। अमेरिका और ईरान की 50 साल की दुश्मनी खत्म करवाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं कि ये दुश्मनी खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने ही पॉलिटिशियंस को, अपने ही सियासतदानों को, अपने ही शहरियों को, अपने ही वकला को, अपने ही जजेस को, अपने ही सहाफियों को वो इबरत का निशान बनाने के लिए तुले हुए हैं। और कसूर क्या है, कोई कौमी मसला है नहीं, जाती मसला है, जाती सियासी एजेंडा है और जाती सियासी इंतकाम का एजेंडा है, और उस पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले जरा, इसलिए यही वजह है कि आपको कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही, किसी भी जगह पे आपको कामयाबी नहीं मिल, हर इवेंट जो है वो आपके गले पड़ जाता है। आपकी, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है, वही कामयाबी उल्टा आपके गले पड़ जाती है और आपको फिर वजाहतें देनी पड़ती हैं। ये जब तक अपने अवाम को, अपने शहरियों को, अपने सियासतदानों को, वकला को, तलबा को, ताजरों को, सहाफियों को आप अपना नहीं समझेंगे, उस वक्त तक कोई बाहर से भी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल सकती। तो ये है मामला जी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि, और ये सब कुछ जनाब सदर ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए जितना आपने गिरे हैं, बिल्कुल लेट गए हैं और पालिश मालिश जो भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें वो की है। अगर यही कुछ आप पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी क़यादत को, इन सबको आप मिलाने की कोशिश करते तो मेरा ख्याल है कि आपकी इज्जत जो है वो बहुत बढ़ चुकी होती और आपका ये जो ओहदा है, इख्तियार है, ये भी सलामत रहता, इसको कोई खतरा नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि वाशिंगटन या पेंटागन के जरिए ये ओहदे बच जाएंगे, तो ये माजी में भी नहीं बचे और आइंदा भी नहीं बचेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हिसार इस वक्त हमारे हुक्मरानों का है सदर ट्रंप पे, कि उनकी खुशनुदी हासिल रहे और नेतन्याहू की खुशनुदी हासिल रहे, तो मसला ही कोई नहीं है। और इसीलिए हर वो काम कर रहे हैं जो हुक्म दिया जाता है सदर ट्रंप की तरफ से। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी एक मसनूई जहानत के जरिए एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो खुद को एक निजात दहिंदा के तौर पे जो है वो दिखा रहे हैं
اور नाउज़ुबिल्लाह ये काम उन्होंने किया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा जाता है कि जी मुमासलत है, क्योंकि करने की कोशिश की गई और सख्त तनकीद के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सोशल मीडिया से ये जो तस्वीर है ये हटानी पड़ी, क्योंकि मसीही बिरादरी जो है वो भी और तमाम के तमाम हमारे ईसाई भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। और सिर्फ यही मसला नहीं, क्योंकि हसास मसला है और सदर ट्रंप ने पोप पर जंग के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन पर भी हमला किया और उनको भी निशाना बनाया और उनको भी तनकीद की और खुद ऐसी तस्वीर शेयर की जिनमें वो एक मसीहाई नजियात दहिंदा शख्सियत के तौर पर दिखाई गए। ये न सिर्फ तौहीन आमेज है बल्कि एक गैर मुतवाजन और शदीद खुद पसंदाना रवैया है। कांग्रेस में रिपब्लिकन अरकान कब तक इस खतरनाक और गैर मुतवाजन शख्स की अंधी पैरवी तकलीद करते रहेंगे, ये बर्नी सैंडर्स ने कहा है और उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी तरफ बरतानिया में बरतानवी पार्लियामेंट में एक तकरीर की गई है, एमपी ने की, मेंबर पार्लियामेंट ने। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सदर ट्रंप है ये किसी महजब दुनिया की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये जराइम पेशा जो एक गैंगस्टर होते हैं उनके ये सरगोना बने हुए हैं। और इस पे उन्होंने अपने किंग चार्ल्स से कहा है कि उन्हें फिर फौर इस बारे में इकदाम करना चाहिए और विजिट करना चाहिए वाशिंगटन का और इस सारी सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। और इस पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है जो सदर ट्रंप ने ये हरकत की है और इसको इग्नोर नहीं किया जा रहा। पूरी यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मसीही बिरादरी के, मसीही कौम के मजहबी पेशवा पोप लियो जो है उन्होंने इस पे जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ट्रंप इंतजामिया से कोई खौफ नहीं और ना ही इंजील के पैगाम को बुलंद आवाज में बयान करने से डरता हूं। अमन और मफाहमत की अपीलें इंजील की तालीमात पर मबनी हैं और मैं ये करता रहूंगा। मेरा किरदार सियासतदान का नहीं बल्कि अमन फैलाने का है। आज दुनिया में बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में हैं, बहुत से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और इसलिए मैं सदर ट्रंप से डर कर कोई अपना मौकफ तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं सियासतदान हूं, ना मैंने खारजा पॉलिसी के तहत चलना है और मैंने वो बात की है जो इंजील में लिखी हुई थी। इसके साथ साथ ही सदर ईरान जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने भी पोप लियो को सपोर्ट किया है और उन्होंने सदर ट्रंप की मजम्मत की है और इस मामले में उन्होंने कहा है कि हम ईरानी अवाम जो है वो पोप लियो को सपोर्ट करते हैं और उनके मौकफ को, अमन व आशती के मौकफ को हम उसको सलाम करते हैं। तो ये इस तरीके से ये भी बात हो रही है। सदर ट्रंप जो है वो अब एक अपनी डोमेन से बाहर निकलकर खेलना चाह रहे हैं और पहले तो वो सिर्फ सियासतदानों को निशाना बनाते थे, अपने मुखालफिन को निशाना बनाते थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने सबसे बड़े मजहबी पेशवा मसीही बरादरी के पोप लियो को हिट किया है और उनको निशाना बनाने की, उनकी तस्दीक करने की कोशिश की है और फिर उनको ट्वीट भी डिलीट करना पड़ी। ईरान के सदर ने कहा कि जी हजरत पोप लियो, मैं ईरान की अजीम कौम की तरफ से आपकी शान में कोई की गई तौहीन की मजम्मत करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ, अमन और भाईचारे के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती किसी भी आज़ाद इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं आपके लिए अल्लाह के जरिए अजमत और सरबुलंदी की दुआ करता हूँ। ये ईरान ने कहा है जी, ईरान के सदर ने कहा है। जबकि दूसरी जानिब स्पीकर ने यह कहा है कि अगर वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, यानी कि अमेरिका, सदर ट्रंप अगर हमसे लड़ना चाहते हैं तो हम भी लड़ेंगे और अगर वो मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ निपटेंगे और हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इन्हें एक बार फिर हमारी कुव्वत आरादी का इम्तहान लेने दें ताकि हम उन्हें बड़ा सबक सिखा सके। अब आते हैं जी जरा पाकिस्तान में हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के क्या करते हैं। वो कोई 3-4 दफा एक बात कह चुके हैं और वो कहते हैं कि जनाब इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल का मैं बहुत ममनून हूं कि उन्होंने रातें जाग कर जो है वो बड़ी मेहनत की है, रातें जागते रहे और रातें जाग कर ये जंग बंद करवाने की कोशिश की और बहुत मेहनत की और इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, रातें जागते रहे। तो मसला ये है कि क्यों ये निशाना बनाया जाता है, मजाक अपना तमस्खुर उड़ाया जाता है और किस मुल्क के सरबराह हैं कि जो हालत जंग में हो और वो ये काम ना कर रहे हो, सारे ही करते हैं। और फिर ये है कि रातों को जागना नहीं होता बल्कि टाइमिंग्स का भी मुख्तलिफ होते हैं और ये बातें अंडरस्टूड होती हैं लेकिन ये बयान करने की जरूरत नहीं होती कि हमने रातों को जाग कर क्या किया। फिर ये कहते हैं कि जी मेरे पास ऐसे राज हैं जो कि मैंने अगर बता दिए तो मेरे सीने में रहें और मैं बता नहीं सकता। ये एक तरफ फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मेरे सीने में राज हैं और ये हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद ये जुमला बोल देते हैं कि मेरे सीने में बहुत राज है।
تو یہ کس کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کس کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل کو سوچنا چاہیے اور ان کی ٹیم کو سوچنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انوانٹیڈ جو ہے اور بالکل بغیر کسی سیاق و سباق کے یہ بات کر کے کس کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے سینے میں کون سے راز ہیں، اگر میں نے بتا دیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو